Okay. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you people are doing great. Finally, we start with debate related to organizations. International organizations constitute an integral part of the debate related to different subjects that include Pakistan affairs, current affairs, international relations, and political science. Or certain times those topics are related to, let's say, the history subjects as well, Indo-Pak history, even European, let's say, US history, and so on. So रीजनल कॉन्टेक्स्ट हम शुरू करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो आज की डिबेट है दैट इज रिलेटेड टू द शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट्स द most important question that has been asked more than thrice in past years and has the, let's say, importance in this day and age as well. So let's understand this topic with the help of the slides as to what we are going to discuss and how. Recording stopped. Recording in progress. So Shinghai Cooperation Organization, this topic is important as we just discussed. The basic debate is कि इस region की जितने भी ममालिक हैं उसमें कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि इसके members हैं, कौन से observers हैं and so on. ये जो मैप है ये आप इन कलर्स के ऊपर ना जाइएगा, that is a bit old fashioned. I found it very interesting to let you people know that all these countries are either potentially the members or basically part of the community that constitutes Shanghai Cooperation Organization. हम जैसे हर एक टॉपिक को आउटलाइन की फॉर्म में पढ़ते हैं because that helps us understand this topic in its totality and entirety and makes it even more interesting. तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं. इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी जब आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ें तो उसका ना आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए, सर्कमस्टांसेस पता होने चाहिए, जिन सर्कमस्टांसेस में पर्टिकुलरली वो जो टॉपिक है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ है. देन ऑब्जेक्टिव्स उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को बुनियाद बनाकर आप इसकी क्रिटिकल एनालिसिस जनरेट करें कि आया वो सक्सेसफुल है या वो अनसक्सेसफुल. दैट इवन गोज फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, Shanghai Cooperation Organization that we are studying, United Nations or SARC or even ASEAN, Asia Pacific Council, Trans-Pacific Partnership and so on. Because you would have to judge a particular organization based on its strengths as well as the weaknesses, and those can properly be understood if we just understand its goals and make the relevant articles relevant to that particular. SCO in Pakistan, क्या challenges and opportunities हैं? SCO and regional security concept, SCO and the new regionalism in Asia, then that will be followed by the conclusion. That would constitute the essence of this particular debate. Recording stopped. Guys, just wait 1 minute, we will start from there. So this is our outline. Based on that, we will discuss things. Introduction हम एक discuss कर लेते हैं. This would help you out in understanding as what should be discussed and what should be not. Shanghai Cooperation Organization एक ऐसी organization है जो कि 2001 में जो है वो establish हुई थी. जो है वो उसमें यूरेशियन जो स्टेट्स हैं वो 6 हैं: चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान and Uzbekistan, and that covers territory hosting a quarter of world's population. दो इसमें जो रियासतें हैं वो let's say यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स भी हैं, 2 और जो है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं. तो टोटल 4 रियासतें हैं जिनके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं. एससीओ एक इम्पॉर्टेंट एक्टर के तौर पर इमर्ज हो रहा है पर्टिकुलरली आफ्टर 1995 एंड इवेंचुअली हैव बिकम रीजनल important regional player and whose significance is widely discussed in Europe, Asia, America and Africa likewise. एससीओ अपने आप में एक डिफिकल्ट है ऐसे कैटेगराइज करना है कि ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसका जो रोल है वो अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है. बट अगर आपको एमसीक्यू में ये क्लियर कट चॉइस दी जाए कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एससीओ इज,
तो आपने वहां पे फिर ये लिखना है कि जैसे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल रोल्स. फॉर एग्जांपल, it is playing its role as a regional organization, as the balancer of the security, as a force of economic integration, as well as it has the geopolitical dimensions because of the inclusion of many parts who are otherwise nuclear in this region. So इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो है वो हमें एक इम्पॉर्टेंट नजर आती है. अभी तक हम कोई ऐसा बड़ा रिकॉर्ड नहीं देखते एससीओ का कि उसने यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराया हो, यहाँ कोई जो कन्फ्लिक्ट है वो प्रिवेंट कराया हो. लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम SCO has become a prominent player in the region and is even labeled as the, let's say, challenge to the presence of the NATO. और वारसा पैक्ट के बाद नेटो को चैलेंज करने की कोई अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इतनी मैस अपील और कैपेसिटी है, दैट इज सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन इसके पीछे एक चाइनीज फिलॉसफी भी है, बिकॉज चाइनीज फिलॉसफी इज के जस्ट गो विद द स्लो पेस, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम. तो चाइनीज इसमें फिलॉसफी फिर ये है कि हमारा जो फोकस है वो अभी इंटर स्टेट जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व या प्रिवेंट कराना नहीं है. हमारा फोकस ये कि जो हमें कॉमनैलिटी ऑफ थ्रेट ममालिक को, उनको बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए. तो उसके लिए हमें फिर फोकस करना चाहिए कि जी इस रीजन में फॉर एग्जांपल किस तरीके से टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, ये 3 मेजर इविल्स हैं, इनको जो है वो एड्रेस करने के ऊपर फोकस करना चाहिए. इस हवाले से इट इज बेसिकली स्पीडिंग अप विद सिक्योरिटी कोऑपरेशन एज वेल एज इन सर्टेन स्ट्रेटेजिक पैराडाइम एज वेल. और इन 3 थ्रेट्स को जब सामने रखते हुए अपनी स्ट्रगल कर रही है, तो उसकी वजह से यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक हैं वो खफा भी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आउटर जो लेयर है वो मॉरली तो ठीक है, लेकिन दी व्हील्स विद इन व्हील्स अरेंजमेंट एज इन्विजन्ड बाय चाइनीज पीपल इजंट बेसिकली up to the mark and hence it should be detested as an organization. जब रूस और चीन इकट्ठे इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज बेसिकली सीन एज द काउंटर फोर्स to challenge the geopolitical influence of the NATO as well as the United States of America and Eurasia and beyond. क्योंकि SCO का एक ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, ये भी है कि इस रीजन में, यानी कि ये जो एशियाटिक रीजन है, इसमें एशियन सेंचुरी या इसमें हम बड़ी लेवल पे जिस वजह से कोई चीज अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे आपसी जो तजादात हैं उनकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट है. इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है? वो है कि एक्स्ट्रा रीजनल प्रेजेंस इस रीजन में, और वो है अमेरिका की प्रेजेंस. तो जब तक हम उस प्रेजेंस को चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक हम उस प्रेजेंस को काउंटर नहीं करेंगे, तब तक नथिंग कंक्रीट इज पॉसिबल. ठीक है, तो ये बेस लाइन है जिसको सामने रखते हुए ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो इवेंचुअली जो है वो अपनी जड़ें भी मजबूत कर रही है और अपना जो स्कोप है चीजों का वो भी इवेंचुअली एक्सटेंड कर रही है एंड सो ऑन. ये एक इंट्रोडक्शन है जो कि आपने ध्यान में रखना है. अब हम आते हैं सिंपल बेसिक इसमें आइडिया के ऊपर कि डेफिनेशन वाइज फिर आपको पता होनी चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है. तो एससीओ अपने आप में देखने में तो हमें एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लगती है, बट इट इज नॉट सो. इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. 8 मेंबर हैं उसमें, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिजिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान. एससीओ जो है वो पहले थी शिंघाई 5, शिंघाई कम्युनिटी, शिंघाई 5 1991 में, बेसिकली 1995 में इसकी बुनियाद पड़ी थी, ताकि जो वैक्यूम, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन की वजह से, उसे किस तरीके से कैटर किया जाए. लेकिन 2001 में शिंघाई 5 ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो यही थे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, यानी कि जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो स्ट्रेटेजिक पैराडाइम जो है उसमें किसी फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन को हम आगे लेके चलें. जैसे हमने पहले बात की कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइट अगेंस्ट 3 फोर्सेस, 3 इविल फोर्सेस. आप पहले वो क्या है?
टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इनके खिलाफ जो लड़ाई है वो करनी। क्यों एससीओ फॉर्मुलेट की गई थी, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये अब मैंने जैसे आपको बात कही कि आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है कि व्हाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन फर्स्ट प्लेस, वो आपको पता होना चाहिए। एससीओ देखें जिस कॉन्टेक्स्ट में बनी है वो आप देख लें कि 1991 का दौर है। 1991 में क्या हुआ है, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हुई है। अब सोवियत यूनियन इतना बड़ा मुल्क है जिसका इन्फ्लुएंस पूरे एशियाटिक रीजन के ऊपर था, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी शामिल थे, चाइना भी शामिल था, सबके ऊपर इन्फ्लुएंस है। जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है तो यहाँ पे पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। सो उस पावर वैक्यूम को अमेरिकन एक्सप्लॉइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे ममालिक को यूरोपियन यूनियन में जगह दी जाती है, नेटो की मेंबरशिप दी जाती है, और एक डिजाइन इस पूरे के पूरे एशियाटिक रीजन के खिलाफ शुरू हो जाती है। सो पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर में जो अमेरिकन हाइपर अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म था उसकी कोई हद नहीं, उसको चेक में रखने के लिए बेसिकली एससीओ का आइडिया हमारे सामने आया। और उसके पीछे एक लॉजिकल वजह ये भी थी कि कोल्ड वॉर इरा के दौरान नेटो को चैलेंज करने के लिए वार्सा पैक्ट मौजूद था, और जब सोवियत यूनियन ने कहा कि हम वार्सा पैक्ट एबॉलिश कर देंगे और अमेरिकन को भी कहा कि आप एबॉलिश कर लें, तो अमेरिकन डिडंट एबॉलिश नेटो। आज तक आप देखें कि नेटो की क्या रेलेवेंस है, इसके ऊपर बड़े बड़े आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। इवन फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन सेड के नेटो इज ए ब्रांड डेड, और वो कह रहे हैं कि अगर हमें कोई थ्रेट है तो हम कोई यूरोप अपनी आर्मी बना सकते हैं। यू शुड हैव इट्स ओन स्टैंडिंग आर्मी, व्हाई इनकॉर्पोरेट अमेरिका इनटू दैट पर्टिकुलर अलायंस, क्योंकि जंग अमेरिका करता है, इट इज द यूरोप दैट हैज टू फेस द that has to bear the brunt of this humanitarian crisis, refugees and everything, terrorist activities and so on। तो नेटो को प्राइमरली के तौर पर चैलेंज करने के लिए सामने आई, और फोकस ये था कि किस तरीके से अब ओपननेस लाई जाए, फ्रेटर्निटी, म्यूचुअल बेनिफिट और मल्टीलैटरलिज्म का जो तस्वर है वो दिया जाए। एक एमसीक्यू पूछा गया है, मतलब एक शॉर्ट कोई 5 नंबर का क्वेश्चन था कि शिंघाई स्पिरिट जब इनकलकेट करना भी एससीओ का एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ है। तो शिंघाई स्पिरिट क्या है, दैट इज working via consensus, harmony, respect for other cultures, non-interference in internal matters and non-alignment। और ये जो Shanghai spirit है, that is basically in line with the ideals of the United Nations as well। तो पहले था Shanghai 5, that was a group created in April 1996, और फिर वो चेंज हो गया। सीओ में पहले फोकस था कि ट्रीटी ऑन डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन द बॉर्डर रीजन, ताकि किस तरह की क्रॉस बॉर्डर कोई मलाइनिंग एक्टिविटी क्रिएट ना हो, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट इज एससीओ। क्या मेंबर्स हैं, कौन कौन से, 2001 से हम शुरू कर लेते हैं कि जब ये फॉर्मली बनी तो चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे। फिर मंगोलिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान को ये स्टेटस मिला, बेलारूस और श्रीलंका को डायलॉग पार्टनर्स के तौर पर देखा गया, अफगानिस्तान को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, फिर तुर्की को डायलॉग पार्टनर बनाया गया। एंड फाइनली एक और चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मुल्क को जो ऑब्जर्वर या डायलॉग पार्टनर का जो स्टेटस दिया जाता है, दैट इज not clearly defined by us। For example, it is uncertain how engaged either in how to engage, for example, an observer or the dialogue partner in cooperation within an organization। So ये head of state है या high level जो officials होते हैं, वो फिर decide करते हैं कि किस तरीके का होना चाहिए। साउथ एशियन राइवल्स जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान कहलाते हैं। 2015 में दोनों ममालिक को ऐड किया गया, दैट वाज द डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान कि अब ऑब्जर्वर स्टेटस से हमें फिर मेंबर स्टेट का जो दर्जा है वो मिल गया, और उनको दोनों को जो है वो फुल मेंबर्स के तौर पर जो है वो एंटर किया गया। दोनों ने ताशकंद डिक्लेरेशन में एमओयू साइन किया और एससीओ के फुल मेंबर्स बन गए। 2017 में आस्ताना में समिट हुई और उनको फाइनली फुल फ्लेज मेंबर्स के तौर पर भी किया गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी मच सिंपल कि जितने भी इस रीजन में ममालिक हैं उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट और गुड नेबरली जो रिलेशंस हैं वो प्रमोट किए जाएं। इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो की जाए।
new political and economic order that must manifest, let's say, manifest democracy, justice and rationality, इसको promote किया जाए. Peace, security and stability. This is the tricolor narrative of SEO. Then the promotion of cooperation in as many affairs as possible that includes people to people contacts and evolving every form of connection that is going to, let's say, help states and societies at large. Then there is focus on fostering cooperation in Central Asian region over security matters, और वो 3 evils हैं: terrorism, separatism, political extremism. एक और ये पॉलिटिकल एजेंडा भी कहा जाता है कि इसका है, और वो ये है कि यूएस और नेटो का जो यूरेशियन लैंड मास पे इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है उसे किस तरीके से चेकमेट में रखा जाए, पर्टिकुलरली इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया. ये सिंपल आपको नजर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एससीओ. वी हैव काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट. उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर्स आ जाते हैं, उसके नीचे फिर ये सारी चीजें काम करती हैं. फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, एससीओ सेक्रेटरी जनरल है, फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. बाकी इसके साइडलाइंस पे जो मल्टीपल चीजें काम करती हैं. फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है, वो बार बार पेपर्स में पूछा गया है, व्हाट इज रैट्स मैकेनिज्म. तो SCO रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड एज द रैट्स स्ट्रक्चर. तो उसके पीछे एक काउंसिल है, उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और फिर उसमें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट ममालिक के. उसके अलावा बिजनेस ग्रुप है, बिजनेस काउंसिल है, इंटर बैंक कंसोर्टियम है और फोरम है पूरे का. अब हम इसका तज्जिया करेंगे. अब क्रिटिकल एनालिसिस हमने बात की कि जब तक हम किसी चीज के ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक हमें उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं और उसकी जो वीकनेसेस हैं उनका जो आइडिया है वो नहीं होगा. सो लेट्स सी कि अब हमें इस चीज में जो है वो क्या फॉर एग्जांपल नजर आती हैं चीजें. अब क्रिटिकल एनालिसिस में पहली तो चीज हमें ये नजर आ रही है कि आज की जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं उसमें एक रेंज ऑफ इश्यूज हैं जिनको कैटर करना बड़ा जरूरी है, और SCO उसमें बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर. फॉर एग्जांपल वी हैव द थ्रेट ऑफ टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इन तमाम तर चीजों ने पूरी दुनिया का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसे मुतासर कर दिया. चूंकि ये तमाम जो चैलेंजेस हैं दीज आर ट्रांसनेशनल इन देयर कैरेक्टर, तो सिंगल कंट्री कैन नॉट एक्चुअली address them. So this requires multilateral approaches. So multilateral approaches अपनाने की जरूरत है. It is in this context that regional and international organizations have emerged, और उनका बेसिक गोल ये है कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक गोल्स हैं और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको मल्टीलेटरल अप्रोचेस के थ्रू जो है वो कैटर किया जाए. एक और इसमें आप ये बात कर लें कि दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है शायद जिसने काउंटर टेररिज्म को अपना एक प्राइमरी टारगेट बना लिया है. हालांकि पेपर्स में यूएन काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव इसके ऊपर भी जो है वो UNCTI के ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी इज द मेजर एजेंडा. लेकिन सिक्योरिटी तो फिर आप देखें कि IR में एक बहुत ही वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट है, करंट अफेयर्स में वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल साइंस में वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट है, इवन पाक अफेयर में जो है वो काफी सारी कॉन्नोटेशंस हैं. SCO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना गोल ही ये सेट किया कि हमने इन 3 इवल्स के ऊपर फोकस करना है, व्हिच मेक्स इट अ वेरी प्राइम ऑर्गेनाइजेशन. SCO दीगर ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट भी है क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, अडेप्टिवनेस भी है, ग्रोथ के ऊपर भी फोकस है, और नए नेटवर्क और मैकेनिज्म क्रिएट करने के ऊपर भी फोकस है. इट्स एजेंडा इज टाइटली फोकस्ड, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज अ लिटिल फ्लेक्सिबल एज वेल. और फोकस ये है कि किस तरीके से SCO के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एम्पावर किया जाएगा उन तमाम तर चैलेंजेस जो कि ट्रांसनेशनल इन कैरेक्टर है उनको सेटल किया जाए. इनको याद करने का ये जो मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा तरीका ये है कि एक तो है काश आपने याद करनी है रशिया, चाइना एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स. हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन 2001 में साइन हुआ. ट्रीटी ऑन लॉन्ग टर्म एंड गुड नेबरलीनेस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ये फिर SCO मेंबर्स में हुआ. जो रियासतें हैं उन्हें एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि दे मस्ट रिफ्लेक्ट द ट्रेंड ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस
और इसको भी हम कह सकते हैं कि दैट इज सक्सेस। मतलब ये मेंबर्स वाली जो बात है, ये हम अपनी सक्सेस में गिनवा रहे हैं कि दुनिया की ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूएन के बाद वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 4 मेंबर्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है। अब यूरोप में आप देखें तो फ्रांस और यूके के पास है, अमेरिका में अमेरिकन के पास है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इसमें अगर नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो जाता है तो 5 न्यूक्लियर कंट्रीज वुड बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेचर ऑफ एग्रीमेंट्स बिटवीन कंट्रीज, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपको यहाँ पे नजर आती है। दैट आल्सो शोज पॉजिटिव साइंस कि किस तरीके का एक इंटरेस्ट है ममालिक में भी कि जो हालत ज़ार है उसे किस तरीके का से बदला जा सकता है और इसको बदलने की एक सीरियस जो है वो कोशिश की जाती है। अब इसमें देखेंगे इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, चाइना भी है। सो एक तरफ हम देखेंगे रशिया जो है वो जब इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया तो दैट गिव्स अस एन इम्प्लिसिट एक्सेप्टेंस ऑफ चाइनाज रीजनल, पर्टिकुलरली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। फिर यूरेशियन रीजन में फिर रशिया को खुद अपना लीडर बोले। फिर इंडिया और पाकिस्तान का भी मौजूद होना इटसेल्फ ये बात करता है कि कैसे कोशिशें हैं कि चीज़ों को एक प्रॉपर मैनर में जो है वो आगे लेके। पाकिस्तान और इंडिया भी इसके मेंबर हैं। पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात कर लें तो पहले वो ऑब्जर्वर मेंबर थे, फिर अब जो है वो फुल मेंबर हैं। तो दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी पैदा हो जाती है कि वो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वलिटी, कंसल्टेशन, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स सिविलाइजेशन और परसूट ऑफ कॉमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें। दोनों ममालिक सिक्योरिटी रेलेवेंट इश्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। जो मौजूदा एरा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की, पर्टिकुलरली जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, तो हमने देखा है कि एलओसी उसके इन एंड अराउंड फायरिंग या फ्रीक्वेंट एक दूसरे के खिलाफ, पर्टिकुलरली इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ जो हेजमोनिक डिजाइन्स हैं वो हमें नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ इट्स एक्सप्लिसिट अपोजिशन टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और साथ ही उसकी मल्टीपल सबवर्सिव एक्टिविटीज जो कि इस पूरी सीपैक और इस तरह का जो दीगर प्रोजेक्ट है उसे सबुटाज करने की बात करती है। सो एससीओ से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यही वाहिद मैकेनिज्म बचेगा इंडिया और पाकिस्तान के जो टफ टाइज हैं उन्हें नॉर्मलाइज करने। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया को भी खुद साउथ एशियन डेवलपमेंट में एक हिस्सेदार बनना होगा, शराकतदार बनना होगा, ना कि हेजमान बनना होगा। इंडिया अगर इस पार्ट में आ जाता है तो इंडिया को सबसे बड़ा इशू है कि उसे सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक रसाई चाहिए। दैट कैन ओनली बी गिवन इफ इट हैज गुड बायलैटरल रिलेशंस विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। एससीओ और रीजनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एससीओ का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वी नीड टू डेवलप अ हार्मोनियस रीजन। अब हार्मोनियस रीजन अब ये कैसे डेवलप हो सकता है, इसके लिए हम इसके आर्टिकल्स के थ्रू एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 1 जो है वो एससीओ चार्टर का वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जी जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें एक्टिव मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में नहीं होना होगा। इवन हमने देखा कि चाइना और इंडिया में कितना डोकलाम प्लेटो में कन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन दैट डिडंट ट्रांसफॉर्म इनटू फुल स्केल वॉर। सो दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली शुड बी सेलिब्रेटेड एंड मस्ट बी, लेट्स से, every country should be proud of. And all the countries of the region should work for the stabilization of the border regions while building military trust for maintaining peace and stability at large. सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक और ये कि जी हमने इस रीजन में आर्म्स रेस डिस्करेज करनी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है कि यार आर्म्स रेस जो है ना, दैट बेसिकली क्रिएट सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा क्या होती है कि एक रियासत के डिफेंसिव एक्शंस को दूसरी रियासत ऑफेंसिवली देखती है, लिहाजा उसको उसके नतीजे में क्या हो जाता है, उसके नतीजे में स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन एंड इवेंचुअली वॉर की पॉसिबिलिटी है वो हो जाती है। सो एससीओ का फोकस है कि वी मस्ट डिस्करेज आर्म्स एंड वर्क मोर इन दी ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो करने की कोशिश करें। इसके लिए फॉर एग्जांपल आर्टिकल 2 है एससीओ का, वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो मुल्क है
वो रीजनल सिक्योरिटी को जो है वो क्वेश्चनेबल नहीं बना सकता, क्योंकि इनसिक्योरिटी ऑफ वन कंट्री वुड बी कंसिडर्ड एज इनसिक्योरिटी फॉर ऑल। उसकी वजह यह है कि हमारा जो रीजन है दैट इज हाईली न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और फॉर एग्जांपल वो इंडिया और पाकिस्तान में जंग हो जाती है खुदा न खास्ता, या चाइना और इंडिया में दरमियान जंग हो जाती है, सो दैट वुड बी वेरी मच कॉन्सिक्वेंशियल एंड दैट वुड and that would have consequences, for example, beyond proportions. Article 2 जो है वो इस बात के ऊपर भी बात करता है कि there would be no, let's say, or seeking unilateral military superiority. अब practice में आप इसे question कर सकते हैं कि many countries like India do not follow, even countries like Russia, based on their economic benefits, eventually sell out certain things to these countries. But then again, this is something that has to be taken into account. मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हम बात कर लेते हैं इस रीजन में, दैट हैज इवेंचुअली लेड टू disregard, for example, to the legitimate interest and of this particular region. But then again, the provision itself is enough to show the objective. एक और अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पे जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको फॉलो अप किया जाता है. दीज आर बेसिकली द important feature of SCO. For example, 2018 में पीस मिशन के नाम से और जब वो एक्सरसाइज की गई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया भी इसमें शामिल थे. कोई some around, let's say, 3,000 soldiers from the member states took part in those counter-terrorism exercises. So that gives the militaries of all the countries, let's say, important let's say way of understanding each other. अब सितंबर अक्टूबर में प्लान ये हुआ है कि there will be PABI anti-terror 2021 exercises, और ये खुशकिस्मती से हो भी रही है पाकिस्तान, NCTC in PABI, बशेरा डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे ये हो रही है. नेक्स्ट इज के ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है ये मीटिंग पॉसिबली जो है ना करे, क्योंकि इंडिया को यही लग रहा होता है कि भाई एवरीथिंग इज बेसिकली पाकिस्तान इज स्पॉन्सर्ड. तो इंडिया may not join this anti-terror military exercise in Pakistan, but nonetheless drills will be held in PAVI, and that decision to hold joint exercises was announced during the 36th meeting of the Council of the Regional Anti-Terror Structure held in Tashkent on March 18. कल्चर के ऊपर भी फोकस है क्योंकि सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स आर द मेन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, लेकिन जब तक कल्चर को भी प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा तब तक नथिंग सब्सटेंशियल वुड बी अचीव्ड एट द एंड ऑफ द डे. सो इसको एक मल्टी फंक्शनल फ्रेमवर्क बनाने की बात की जा रही है, और ये भी फोकस किया जा रहा है कि कोलैबोरेटिव रीजनल यूनिट एक एस्टैब्लिश किया जाए जिसमें कॉमन कल्चरल स्पेस हो तमाम तर रियासतों के लिए. अब उसके लिए जरूरी है कि कॉमन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए इस रीजन में. SCO की एक जॉइंट यूनिवर्सिटी बनाई जाए. चाइनीज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हम देखते हैं कि प्राइवेटली कंट्री स्पेसिफिक जो है वो चल रहे हैं. चाइनीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जाती है, बट नॉनदलेस इट्स स्कोप इज थॉट टू बी वाइडेड. A joint SCO exhibition was held at World Expo in Shinghai in 2010, और SCO ने ये स्पॉन्सर किया फेरी टेल्स strong by children. Minute action for many, but then again a huge action for understanding of the culture of this particular region. जियोपॉलिटिक्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि जब SCO शिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस रीजन में जितने भी SCO के मेंबर ममालिक हैं उनमें लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में रिलेशनशिप की बात कोशिश की जा रही है कि की जाए. फॉर एग्जांपल उसके लिए तमाम ज़रूरी है कि इस रीजन में रशिया और चाइना के दरमियान जो रिलेशनशिप हैं वो अच्छे रहें, वो फ्रेंडली रहें, और उसकी वजह से हमने देखा है कि ख़ास तौर पर इन दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात ही थे, जिसकी वजह से SCO has evolved into what is it today.
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के कॉन्टेक्स्ट हम देखें तो SCO is a unique forum because they can engage with two regional powers simultaneously and engage in the wider trade of this particular region. रूस और चीन की वजह से हमने ये भी देखा है कि कोई भी एक्सटर्नल स्पॉन्सर जो है वो इस रीजन को या इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का जो एजेंडा है उसे डोमिनेट नहीं कर पाएगा. हालांकि इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू ट्रांसफॉर्म SCO into an other SARC, but it has failed in past and it is doomed to fail presently as well. दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि Central Asian leaders have more opportunities to pursue their interests within SCO than they would have framework containing only Russia or only, for example, China. ब्रॉडर इंटरनेशनल सिस्टम के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है SCO का? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो SCO को देखा तो यही गया है कि दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल एक्टर एट द ग्लोबल स्टेज. ये महज एक रीजनल नहीं है और उसकी वजह हम फ्रीक्वेंटली ये बात कर रहे हैं कि इट हैज बीन चाइना एंड रशिया. अब इन दोनों ममालिक की आप या फिर दीगर ममालिक का कंबाइंड साइज आप अगर टोटल membership की तो that represents 1/4 of the world's population and 3/5 of the territory of the Eurasian continent and two nuclear powers जो कि UN Security Council में परमानेंट मेंबर है और काफी सारे और भी हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान जिनके पास वेपन है. SCO अभी तक एक एक्सटर्नल फोकस्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी. उसका अभी तक फोकस ये है कि किस तरीके लिमिटेड रोल इस रीजन में कार्व आउट किया जाए और अपने पांव मजबूत करके फिर ही कोई रीजनल इंटीग्रेशन और इस मैकेनिज्म्स हैं इनके ऊपर फोकस किया जाए. बिकॉज डूइंग सो इन करंट स्टेट of chaos would not be of any help at the end of the day. SCO इसके एक और आप तजिया करें तो दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कैसे चैलेंज है? फॉर एग्जांपल जो है वो USA का मेजर फोकस ये है कि किस तरीके से एशियन रीजन जो है उसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस को कैटर किया जाए. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रोल ऑफ चाइना इन ASEAN, the significance of SCO has increased over the course of time. Americans को क्या threat है? Let's see it as well. For example, Americans को threat ये है कि Central Asian जो countries हैं, they are becoming part of, let's say, a sphere of influence or let's say China and let's say Russia. फिर एक और फोकस ये भी सोचा जा रहा है कि चूंकि चीन और रूस का फोकस ये है कि देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा रीजनल पावर इन द रीजन, अमेरिका फील्स के इन डेज टू कम इट माइट बी ऑप्टेड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. SCO में एक और चैलेंज US के कॉन्टेक्स्ट में ये भी है कि खासतौर पर वेस्ट ये समझती है कि उसका जो मेजर अब चैलेंज आ सकता है, कोई अगर फोर्स उसे चैलेंज कर सकता है तो वो यही है और कोई फोर्स ना हो सकता है ना होगा. पर्टिकुलरली हम देखें तो और कोई ऐसा मुल्क है भी नहीं जो उसे इस तरीके से थ्रेटन करे. So there exists disagreement over international issues. China's economic prowess and Russia's resurgence pose a challenge to the unipolar world order of, for example, the United States of America. अमेरिकन को ये भी खतरा है कि कहीं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अगर ये इत्तेहाद मजबूत हो गया तो ये ना हो जाए कि जो है वो अथॉरिटेरियन नॉर्म्स जो है वो सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया में प्रमोट हो जाए. नेक्स्ट इज हार्डलैंड थ्योरी मॉडर्नाइज्ड. कंट्रोल ऑफ द ये इंपॉर्टेंट है. हार्डलैंड थ्योरी शायद आपको पता नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड. Control of the Eurasian landmass is the key to global domination and control of the Central Asia. And that is likely to control the whole land mass of the world. यानी कि एक theory थी कि he who controls Eurasian region would
eventually control everything in this particular region as well. So ये जो हम थेरी बार बार कह रहे हैं कि हार्टलैंड है, यूरेशियन रीजन है, ये है क्या, ये आप ना अभी थोड़ी सी समझ। व्हाट इज हार्टलैंड थेरी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सवाल ये है, इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि विल वर्ल्ड पावर पिवट फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स यूरेशियाज हार्टलैंड इन 2050। मैकेंडर की ये थेरी है। थ्योरी ये कहती है कि who rules East Europe commands the heartland, who rules the heartland commands the world island, and who rules the world island commands the world. So ऐसी अपने आप में इस थ्योरी के तहत लेट्स से क्या हमें रिफ्लेक्ट कराती है ये पर्टिकुलर थी, ये रिफ्लेक्ट कराती है कि व्हाट आर द इंट्रिकेट डायनामिक्स ऑफ एन रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी, political power, and military strategy. So to say, these are all the things that are interwoven with the demography and economics. मैकेंडर ने इस तमाम तर चीज़ों को स्ट्रेंथ के तौर पर देखा और हार्टलैंड ने अपनी अहमियत यहाँ से बता दी, और यही वो रीजन है जिसके ऊपर कंट्रोल की बातें और कोशिशें की जा रही। ऐसी एक और सिग्निफिकेंस आप इस मामले में भी समझते हैं कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एस्पायरेशंस फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट। हम यूरोप की जितनी भी पॉलिसीज देखते हैं तो उसमें हमें एक ऐसा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नजर आता है जिसमें यूरोप खुद तो डेवलप खुद तो अपने आप को डेवलपमेंट करने की बात करता है, लेकिन इट्स मॉडल फॉर अदर कंट्री इज नॉट बेनिफिशियल। बट चाइनीज इन्फ्लुएंस हैज बीन डिफरेंट, और चाइनीज वर्ल्ड व्यू हैड एंटायरली बीन डिफरेंट। अब इसमें फॉर एग्जांपल फोकस ये भी है आर्टिकल 3 की अगर हम बात कर लें, वो ये कहता है कि जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं वो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में मल्टीपल फॉर्म्स में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगी जिसकी वजह से ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जो फ्री फ्लो है गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज और जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इवॉल्व होता रहेगा। एससीओ बिजनेस काउंसिल भी इस कॉन्टेक्स्ट में 2006 में स्टैब्लिश की गई थी, और काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स थे let's say energy, transportation, telecommunication, banking, education, health, agriculture वो आइडेंटिफाई की गए थे। सीपेक और एससीओ ये भी एक दूसरे को बड़ा जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी इसके थ्रू लिंक किया जा सकता है। टेररिज्म एक इम्पॉर्टेंट थ्रेट है। अब ये वो बातें हैं जो कि आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट बना सकते हैं। If you just go through the slides, I am very much hopeful, pretty sure in fact कि that would help you a lot. एससीओ मेंबर स्टेट्स जो हैं वो कलेक्टिवली टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म को फाइट आउट कर सकती हैं। इसके पीछे बेसिकली आइडिया ये था कि कैसे सिविल वॉर हुई माजी में ताजिकिस्तान में, या फिर देर वर एंटी रिजीम ग्रुप्स इन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज़िस्तान या अफगानिस्तान में करंटली टेररिज्म है बहुत सारा, तो उसको किस तरीके से फाइट आउट किया जाए। रशिया और चाइना की इस रीजन में जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी इन रीजनल डेवलपमेंट्स को ज्यादा मुतासर करती है। इवन चाइना को भी सबसे बड़ा कंसर्न ये कि उसका जो जिनजियांग प्रोविंस है दैट शेयर्स अराउंड 2800 किलोमीटर्स बॉर्डर्स विद दी 3-4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो उसके लिए जरूरी है कि किसी भी तरह का जो फॉर्म ऑफ कन्फ्रंटेशन है या किसी भी तरह की जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो किसी तरीके से ना हो। सो ये जो 3 इविल्स हैं इसके लिए रेट्स का जो मैकेनिज्म है ये करंटली प्लेस में है। क्या चैलेंजेस हैं आगे, मुस्तकबिल क्या है? देखें, सबसे बड़ी जो चैलेंज इस वक्त नजर आती है वो हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नजर आती है, पर्टिकुलरली आफ्टर द विथड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन देयर हैड बीन फ्रीक्वेंट अटेम्प्ट्स ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। मिसाल के तौर पर एक हम देख लेते हैं कि state sponsored terrorism and part of India, multiple splinter groups and terrorist organizations के उनको यूनिफाई कराने में उनकी ऑफिसरिंग, ट्रेनिंग, फाइनेंसिंग, मेंटोरिंग और उन्हें टेक्निकल और जो काइनेटिक सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ। लेकिन इंडिया ट्राइज टू claim that Pakistan is basically sponsoring a state of terrorism across LOC. That's also a bigger challenge. पाकिस्तान ने कहा है कि हम ये जो इशू है ये डिस्कस कर सकते हैं एससीओ प्लेटफॉर्म के ऊपर। देन अगेन इट इज इंडिया दैट इज बेसिकली let's say shying away from discussing this thing because it has been exposed through Kulbhushan Yadav for all its activities in Balochistan as well as in the tribal areas of Pakistan. So काफी हवाले से एक और इशू ये भी है कि मेरे ख्याल से टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो भी अभी तक कोई किसी क्लियर कट मैनर में फॉर्मुलेट नहीं।
and that also makes it a bigger challenge for this particular. Okay. Peace in Afghanistan is also an important priority, particularly ongoing fight of between Taliban forces and the government forces. तो इंसर्जेंसी चल रही है, दैट वुड हैव a spillover effect on all the countries of the region. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए चाइना की कोशिश ये है, पाकिस्तान और जो रीजनल ममालिक हैं उनकी कोशिश ये है कि किस तरीके से एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिसके थ्रू तमाम की तमाम तर जो रियासतें हैं वो आपस में भाईचारे के साथ हैं, और अफगानिस्तान में कोई भी रियासत अपने जो जैसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ जैसे आसान है उनसे गुरेज कर। चाइना और रशिया ने जो है वो इसके लिए तालिबान के साथ मीटअप भी किए हैं, अफगान गवर्नमेंट को भी काफी सारा कॉन्फिडेंस मिल लिया है। इवन अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाईलाइट कर लिए। चाइना का बेसिक concern क्या है? Why is China so much interested in Afghanistan? It is primarily because of the East Turkestan Islamic Uyghurs have Pakistan उनका अफगानिस्तान में ट्रेंड किया जाता है। एट द सेम टाइम चाइना का ये भी ख्याल है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अफगानिस्तान इज स्टेबलाइज्ड, देयर वुड बी फॉर एग्जांपल China's economic vision in the form of Belt and Road Initiative. दाइश की मौजूदगी अफगानिस्तान में that is inherently a bigger challenge to the regional connectivity and regional security as well. So what is conclusion? Conclusion हम ये देखते हैं कि SCO एक बहुत important organization है जो कि regional competition को harmonize कराने में, extra regional powers की presence डिस्करेज करने में, आर्म्स रेस और एक्सट्रीमिज्म को और एड्रेस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं ताकि फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और रीजनल इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी सारी प्रोडक्टिव कोशिशें करें। एनर्जी हो, इकोनॉमी हो, ट्रेड हो, कम्युनिटीज की प्रोडक्शन हो या रीजनल इंटीग्रेशन हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो हमें प्री डोमिनेंट नजर आता है। एसईओ का जो रोल है दैट कैन आल्सो एक्सपेंड, बट देन दैट इज सब्जेक्टेड टू द challenges this organization is going to face, not only just now but in days to come as well. That's all on SE. Thank you so Recording much for stopped. listening. आई होप यू पीपल गॉट दिस। आपने ना अभी मुझे उस लिस्ट में से बताना है कि कौन सा टॉपिक नहीं हुआ, तो हम उसको जो है वो उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेसिस पे कर लेंगे। वेडनेसडे पे आई एम प्लानिंग ए न्यू सेशन। आई वुड जस्ट अर्ज यू पीपल टू रिकमेंड मी एनी टॉपिक जो कि मैं फिर लाइव पढ़ाऊँ। ये भी सेशन ऑलमोस्ट अपडेटेड ही है, लेकिन इसमें भी अगले सेशन में भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कोई नई चीज़ें पढ़ाऊँ। आप लोग अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा, और ये अगर आप फेसबुक पे लिख लेंगे जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें आपने इसमें सीखी हैं, if you could just highlight them for public and certain pitfalls that you think I should improve for the next page, then send them in private. I will be working on that. ठीक है, on this note we end today's class. Thank you so much.